Hello, everyone, and welcome back to yet another inspiring episode of Reset and Rise with Juhi, the podcast where we uncover simple and powerful ways to heal, grow, and step into the most confident version of you. Today's episode is truly special because we are diving deep into the topic that every individual struggles with a relationship patterns. So, whether it is repeating the same emotional cycles or attracting the same kind of partner or feeling unheard despite of giving your best in your relationship, so patterns run deeper than we realize. And today, to help us decode this beautifully, we have an incredible guest with us, Pooja Kavaiya, a powerful life coach and a healer who has transformed countless lives with her heart-centered approach. Pooja specializes in healing people, heal their emotional wounds, release past baggage, and create healthy, loving relationships from inside out. So let's welcome Pooja with us. So, thank you so much, Juhiji, for inviting me into this podcast. Thank you so much for giving me this opportunity to serve the audience. Thank you so much. Uh, Thank you for your time, Pooja, and thank you for being with us here today. So we would like to know a little more about your journey. How did it begin? Okay, so I start my life coaching journey in 2023, January 2023, and it's going to 3 years now. And in 3 years, we work mostly on the emotional issues of the people, relationship issues, people who are going through the issues like the depression, anxiety, suicidal tendencies. So we work with all those people as well as most. My strength is all about is manifestation and relationship coaching. So we work with people who are going through the relationship challenges and also teach them how to manifest their dream life. So that's what I work. And we also decode people's personality using the technique or tool called handwriting analysis. Wow, that's really amazing. And I hope are people nowadays are mostly facing the repetitive patterns जो कि हम बहुत बार सुनते हैं. This is very common in today's relationship, be it any couple, be it means patterns जो हैं वो बार बार repeat होते ही हैं. This is most challenging. So मतलब आपको कैसे लगता है what early experiences do you think shape most relationship patterns in adulthood? सो सबसे पहले एडल्टहुड की जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो एडल्टहुड की होती ही नहीं है. इट इज स्टार्ट वे मोर बिफोर इन अवर चाइल्डहुड. जैसे कहा जाता है कि 7 साल की एज तक एक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और उस दौरान उसका जो भी प्रोग्रामिंग हो चुका है वही उसकी एडल्टहुड में रिलेशनशिप को बिल्ड करता है. सो बेसिकली जो भी हमारे पेरेंटल वुड्स है, जैसे कि अब हमारे पास मैं एक रियल लाइफ स्टोरी से सिखाना एग्जांपल देना चाहूंगी कि उनके पापा उन्हें प्यार करते थे, उनके प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते थे और बिकॉज पापा के भी अपने इश्यूज थे. ठीक है. सो पापा दूसरों के आगे बहुत ही ज्यादा प्यार एक्सप्रेस करते थे, लेकिन जब कोई ना हो तो प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे, उन्हें अवॉइड करते थे या डराते धमकाते थे. तो एक हमारे क्लाइंट के अंदर एक बिलीफ बन चुका था कि लव इज फेक. अब उसका रिजल्ट एडल्टहुड में क्या आ रहा है? उनकी शादी नहीं हो रही, बिकॉज कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन गया, एक बिलीफ बन गया कि लव इज फेक, लव इज सेल्फिश, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है. तो इसी तरीके से हमारे चाइल्डहुड में जैसी हमारी पेरेंटिंग, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स भी कॉन्शियसली बच्चों के साथ कुछ गलत करते हैं, लेकिन वो भी अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और उनके भी अपनी पैटर्न्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है. तो उस दौरान जो भी जाने में या अनजाने में बच्चे के साथ हुआ है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देता है. अब जब ऐसा लव इज फेक ऐसा बिलीफ एक बार बच्चे के माइंड में आ गया तो उसके बाद अभी कोई सच में प्यार करने वाला इंसान भी उनके सामने आएगा, वो लव को रिसीव नहीं कर पाएंगे. लव इज सेल्फिश, वो बिलीफ बन चुका है. तो क्या, नो मैटर हाउ मच लव दे हैव इन देयर लाइफ, दे कैन नॉट एक्सपीरियंस इट. सो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हमें मम्मी या पापा के साथ होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी के मम्मी या पापा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और उन्हें उनके साथ कंप्लेन है,
कि मेरे पापा या मम्मी मुझे समझते नहीं है, तब उसका रिफ्लेक्शन सीधा उनकी मैरिड लाइफ में क्या आएगा? अभी वो कंप्लेन रिपीट होगी कि मेरे पार्टनर मुझे समझते नहीं है, वो मेरी सुनते नहीं है। सो बेसिकली इट्स वे बिफोर, जब हमें पता भी नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम्स तब शुरू हो जाती है और एडल्टहुड में वो इम्पैक्ट करती है। और कई बार हमारी करियर में भी ये कैसे इम्पैक्ट डालता है कि एक आइडेंटिटी बन जाती है कि आई एम अ फेलियर और आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, लो सेल्फ सेल्फ वर्थ का रीजन बनती है। और उसके बाद हम जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, ऐसे कई सारी पैटर्न्स एक बार बचपन में अगर बिल्ड हो गई, तो वो सीधा एडल्टहुड में आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम खड़ी करेगी। जैसे कोई मदर या फादर है, वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो वो क्या है, उनके बिलीफ अपने बारे में बन रहे हैं ये। इट इज नॉट के आप इसमें सबसे ज्यादा रोल पेरेंटिंग का आएगा, और उसमें पेरेंट्स को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी वो सब कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहे। उनके अपने खुद के पैटर्न्स होंगे कि जिसके कारण वो सर्टेन वे में बिहेव कर दिया होगा उन्होंने बच्चों के साथ। सो यहाँ पे पेरेंट्स को भी ब्लेम करने की जगह बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अपनी जो पैटर्न बनी है उस पर हम काम करें। सो इसी तरीके से जो चाइल्डहुड का हमारा अपब्रिंगिंग है या नर्चरिंग है, या जो बिलीफ सिस्टम उस वक्त बन गई है, सबकॉन्शियस माइंड ने अनकॉन्शियसली जो बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है, वो एडल्टहुड में प्रॉब्लम बन के आती है। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच। हाँ, ये सही बात है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। हाँ, होता है, बट एब्सोल्युटली वी कैनॉट ब्लेम आवर पेरेंट्स, क्योंकि हैड दे नोन बेटर दे वुड हैव डन बेटर फॉर अस। बट हाँ, हर पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग का अपना तरीका होता है, जैसे कि थोड़ा डांट के थोड़ा, बट हाउ और द दूसरी बात कि पुराने जमाने में प्यार एक्सप्रेस करना इतना मायने नहीं रखता था, वो केयर के थ्रू अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे, कई बार मारना भी उनका प्यार था। सो बेसिकली उसका बच्चे के क्रिटिकल फिल्टर्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। उनका जो हम एनएलपी में सीखते हैं, जनरलाइजेशन, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, तो ये सारे राइट, फिल्टर्स प्रॉपरली अभी बिल्ड हो रहे हैं और ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो इसमें ना पेरेंट्स का दोष है ना चाइल्ड का। राइट। तो आप मुझे बताओ कि ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये इमोशनल वाउंड्स हमारे रिलेशनशिप में रेपिटेटिव है कि नहीं है। बिकॉज कॉमन मैन तो है ये ऑब्जर्व ही नहीं करेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, बट ये रेपिटेटिव है, कि जो भी मेरा चाइल्डहुड पैटर्न है वो मेरे रिलेशनशिप में आ रहा है या मेरे करियर में भी आ रहा है। कई बार वो मनी पे भी रिफ्लेक्ट होता है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि सब एरियाज में वो रिफ्लेक्ट होता है, बट a common man will never be able to find out, तो वो कैसे फाइंड कर सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, बाकी के लाइफ कोचेस हीलर क्या करते हैं हमें नहीं पता, बट बेसिकली मैं जो करती हूँ वो हम बताते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस राइट डायग्नोसिस इज द हाफ सोल्यूशन। तो उसे डायग्नोस करने के लिए हम हैंड राइटिंग एनालिसिस टूल को यूज करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास जब भी कोई लोग आते हैं तो वो हमें अपने हैंड राइटिंग्स दिखाते हैं, और हैंड राइटिंग की मदद से हम हमारी इतनी सारी पैटर्न्स को जान पाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पैटर्न है कि फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, अगर आपके अंदर वो डेवलप हो गई है तो हम हैंडराइटिंग के थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर कुछ पैटर्न्स रिजेंटमेंट की, डिटैचमेंट की, डिजायर फॉर अटेंशन की, कई सारी पैटर्न्स अगर किसी इंसान में बन चुकी है, ठीक है, तो वो पैटर्न्स को हम हैंडराइटिंग एनालिसिस टूल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हैंडराइटिंग से भी ज्यादा हम कहेंगे ब्रेन राइटिंग, बिकॉज कुछ लोगों के हाथ नहीं होते हैं, तो वो लोग कुछ मुंह से लिखते हैं, कुछ पैरों से लिखते हैं, ठीक है, तो वो सब लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे सबकॉन्शियसली पैटर्न बन चुके हैं या जो भी हमारे न्यूरल नेटवर्क्स बन चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे हाथ स्ट्रोक्स लिखेगा, या जो भी हाथ से, पैर से, मुंह से स्ट्रोक्स वही निकलेंगे। कि हैंडराइटिंग में हम ये नहीं चेक करते कि आपके हैंडराइटिंग अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसमें कैसे स्ट्रोक फॉर्मेशन होता है हम वो चेक करते हैं। और बेसिकली जब भी हमारे पास कोई हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए आता है, वी स्पेंड 3 आवर्स जस्ट टू
एक्सप्लेन देम व्हाट देयर हैंडराइटिंग टेल्स अबाउट देम। और उसपे उन्हें पता चलता है कि अभी मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है इट इज नॉट के जो मुझे लग रहा है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, मेरी पैटर्न्स क्या है वो उसमें उनकी पैटर्न्स क्या है वो हम पूरा 3 घंटा लेके समझाते हैं। और उसमें लिटरली पीपल स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वहां पे उन्हें ये लगता है कि उन्हें उनसे भी ज्यादा अभी कोई समझ रहा है, बिकॉज अब तक उन्हें जो लग रहा था और एक्चुअल उनके प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैंने कहा कि कई बार फियर ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर होता है, लेकिन किस तरीके से वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है वो उन्हें पता नहीं होता। ऑब्वियसली वो फियर राइट। ट्रिगर होता है और उनका कोई बिहेवियर बाहर आता है। फिर कई बार वो उन्होंने अनकॉन्शियसली रिश्तों से डिटैच होना शुरू कर दिया है। वो लोगों से, जैसे एक बार कोई कहते हैं ना कि एक बार नजर से उतर गया तो उतर गया, फिर वो वापस आ नहीं रहा है इंसान उनकी नजरों में। तो ऐसी पैटर्न्स बिल्ड हो गई है, तो कोई उन्हें उन्हें बताने वाला तो चाहिए कि अभी ये पैटर्न्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। देन कई बार सिलेक्टिव लिसनिंग की पैटर्न होती है कि फॉर एग्जांपल कोई बोल क्या रहा है, आप परसीव क्या कर रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू, और सबसे पहले जब हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए आते हैं तो हम उन्हें पर्पस पूछते हैं दैट व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस एनालिसिस। और उनके पर्पस के अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपको लग रहा है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ये टूल हम यूज करते हैं कि लोग समझ पाए कि उनकी परसीव्ड प्रॉब्लम्स और एक्चुअल प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा, राइट डायग्नोसिस इज द हाफ सोल्यूशन, और पीपल कैन लिटरली रिलेट। हमारे हैंडराइटिंग एनालिसिस में जब भी हम पूछते हैं ना कि आप कितना परसेंट रिलेट कर पाए, तो मिनिमम 80 to 90% का रेशियो उसमें आता है। कई बार 70-60 भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार 100% भी आता है, बट इतना पीपल रिलेट कर पाते हैं कि यस यू आर टेलिंग इज राइट। इस तरीके से वी डायग्नोस पीपल्स प्रॉब्लम्स। दैट्स रियली अमेजिंग। अगर आप मतलब हम हैंडराइटिंग से इतना ज्यादा वी अंडरस्टैंड पीपल एंड आइडेंटिफाई people, so it will be really helpful अगर if this is the theory of identifying the things, और आपके आपके आसपास जो भी हो रहा है आप अगर उसे आइडेंटिफाई करके ठीक कर पाओ तो only then you can move ahead in life definitely. So thank you so much for sharing this. This is also one way to identify and be aware of your repetitive patterns. लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि परसीव्ड इमोशन, तो बहुत बार कैसे होता है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो हम वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? सो बेसिकली इमोशनल इंस्टेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका रीजन ये है कि हमने कभी इमोशंस को मैनेज करने की आर्ट को सीखा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में तो सिखाया ही नहीं जाता कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे कैसे प्रोसेस किया जाए, अगर आप हर्ट होते हैं तो उसे कैसे प्रोसेस किया जाए, अगर किसी ने आपको चीट किया है तो उस चीटिंग के एक्सपीरियंस से बाहर कैसे आया जाए। बिकॉज वी डोंट एक्सपीरियंस द लाइफ जो वो जैसी है इस तरीके से हम लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करते, वी एक्सपीरियंस लाइफ बेस्ड ऑन अवर स्टेट्स एंड अवर पैटर्न्स। सो बेसिकली अगर मेरी चाइल्डहुड में एक पैटर्न बन चुकी है, फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, के जहाँ पे अब ये पैटर्न मटीरियलाइज कैसे होगा, जैसे अगर किसी के हैंडराइटिंग में हम देखते हैं कि फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड दिखाई दे रहा है, तो सीधा वो उनकी ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करेगी। या तो इंसान बहुत ज्यादा खाना खाएगा या बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा, या तो बहुत ज्यादा सोएगा या बिल्कुल भी नहीं सोएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिकॉज वो फियर उनकी एपेटाइट और उनकी स्लीप साइकिल को तुरंत इम्पैक्ट करेगा। फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड की वजह से डेफिनेटली वो लैक ऑफ लव फील करेंगे। अब इसमें उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उन्हें कितना भी प्यार करें, उनके डर के कारण वो प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कई बार होता है ना कि लोग प्यार पाने के लिए शादी करते हैं और शादी के बाद भी उनका इमोशनल एक्सपीरियंस तो नहीं बदलता है। वो पहले जो लैक राइट। ऑफ लव फील कर रहे थे शादी से पहले, उन्हें लगता था शादी के बाद हैप्पीनेस, लव, जॉय सब कुछ मिलेगा, लेकिन शादी करना इज नॉट द सोल्यूशन। शादी आपको वही एक्सपीरियंस लाके देगा जो पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। बिकॉज वी कीप ज्यादातर होता यही है कि हमारे पैटर्न की वजह से हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, सेम चीजों पे फोकस करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि सेम चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे
हमारी आदत हो गई है कि लोग जो बोलते हैं उसे एज अ क्रिटिसिज्म परसीव करना, कि कोई बोल रहा है सब कुछ पर्सनली लेना शुरू कर देना, या राइट। फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कई बार होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर हम पर्सनलाइज लेना शुरू कर देंगे तो हमारा फोकस क्या होगा, कि पीपल आर नॉट गुड इनफ, वो मेरे से सही तरीके से बात नहीं करते, तो वो सेम चीज पे फोकस, सेम एक्सपीरियंस लेकर आएगा। और इसीलिए वी ऑलवेज फोकस ऑन, क्या कहेंगे, कि हमारे इमोशनल इमोशंस को कैसे मैनेज करना, ये हम जब कोई हमारे लाइफ कोचिंग सेशन में आता है तो हम सिखाते हैं कि कैसे इमोशन को प्रोसेस किया जाए। बिकॉज इंसान होने के नाते ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, या स्ट्रेस नहीं राइट। आएगा, इट विल कम, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें यहाँ सीखना ये है कि कैसे उसे प्रोसेस करें, कैसे उसे मैनेज करें। बिकॉज जब भी हम किसी नेगेटिव इमोशन में होते हैं ना, हमारा फोकस इतना नैरो डाउन हो जाता है कि हमें बस हमारे हमारे हर्ट के ऊपर या गुस्से के ऊपर हम इतना माइक्रो फोकस कर देते हैं कि हम बिगर पिक्चर को देख नहीं पाते। सो राइट। उसके लिए कोई चाहिए आपको दिखाने वाला कि इससे बाहर भी कुछ पिक्चर है, कुछ दुनिया है, कि जिस पे आप फोकस करके अपने एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। और दूसरी Yes. बात, के इमोशनल इंस्टेबिलिटी में लोगों को ये लगता है कि लोग मुझसे अच्छे से पेश आते नहीं है या प्यार नहीं करते, इसलिए मैं सर्टेन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पीपल विल ट्रीट यू इन द सेम वे यू ट्रीट योर ओन सेल्फ। जितना आप खुद को समझेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों की तरफ से भी प्यार और एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा। बिकॉज पीपल आर जस्ट द रिफ्लेक्शन। सो इमोशंस राइट। को सबसे पहले कि हमें इमोशंस मैनेज करना सीखना पड़ेगा, इमोशनली रेजिलिएंट होना सीखना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ है, कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होता ही रहेगा हमेशा। जैसे हमारे सीजन्स होते हैं ना, कि कभी धूप कभी छांव, तो उसी तरीके से लाइफ में धूप छांव आती रहेगी। वी हैव टू लर्न Absolutely. हाउ टू बी हैप्पी इन धूप एंड छांव बोथ। Right. Absolutely. Thank you so much for sharing this, क्योंकि यही तो चीज है जो हमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं किया या सप्रेस किया तो एक इमोशन से कई नेगेटिव इमोशंस जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो हमारे हर एरिया में दिखते हैं। और वैसे ही जो आपने बोला कि वो रेपिटेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक द लॉन्ग स्टैंडिंग अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न, वो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अभी मेरा ये आंसर सुन के कई सारे लोगों का दिल टूटेगा। उसमें सबसे पहला और सबसे डेंजरस स्टेप यही है, स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, स्टार्ट राइट। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज जब भी कोई मेरे पास आता है तो पहले सेशन में ही आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, और आई फील हर्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ, और वट एवर। हम सबके पास कोई ना कोई थिंग, सिचुएशन और पीपल होंगे ही होंगे कि जिसे हम ब्लेम करते रहते हैं, राइट। सो स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आपका जो भी इमोशनल एक्सपीरियंस आपको लोगों की तरफ से मिल रहा है, वो अल्टीमेटली आपकी पैटर्न है। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा, वी आर नॉट एक्सपीरियंस द लाइफ द वे इट इज, वी एक्सपीरियंस लाइफ बेस्ड ऑन अवर पैटर्न्स, बेस्ड ऑन अवर, क्या कहें कि जैसे हमारी पैटर्न होगी उसके अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी लैक ऑफ लव फील करने की मेरी पैटर्न है, कोई मुझे कितना भी प्यार कर ले, मुझे वो कम ही पड़ने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक मेरा फोकस वहीं पे जाएगा कि जैसे पूरे व्हाइट पेपर पे एक काला डॉट है तो फर्स्ट फोकस काले डॉट पे जाएगा, उस तरीके से हमारा राइट। फोकस उसी चीज पे इतना नैरो डाउन हो जाएगा कि हमें पूरा व्हाइट पेपर नहीं देखा गया, वो ब्लैक डॉट पहले दिखेगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, बिकॉज अवर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप इतना अच्छा अगर हम कहें कि हमारे लाइफ का एरिया है, कि वो जस्ट वही रिफ्लेक्ट करेगा जो एक्चुअली में हम अंदर से है। जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्डन इन गार्डन आउट, ये इतना ज्यादा कहे कि रिलेशनशिप में हमें कभी भी दूसरों के साथ काम नहीं करना, हमें खुद पे ही काम करना है। सो ब्लेम और कंप्लेन छोड़ के खुद के इमोशंस पे काम करना शुरू करो, कि फॉर एग्जांपल खुद को समझना शुरू करो, खुद के साथ रिकनेक्ट होना शुरू करो। और मैं समझती हूँ कि ऐसे ही कोई रिकनेक्ट नहीं हो पाएगा, खुद से सेल्फ लव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे नहीं। सीखना पड़ेगा। कि और
उसके लिए अभी देखिए, कोरोना से पहले तो पता नहीं, लेकिन कोरोना के बाद इतने सारे हीलर्स, लाइफ कोचेस है, आपको जिस पे भी विश्वास है, किसी पे तो विश्वास करो, किसी से तो जाके सीखो कि कैसे इमोशंस को मैनेज किया जाए, कैसे अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाए, कि किसी ना किसी से सीखो, किसी की मदद लो, और अल्टीमेटली सब उसके लिए सबसे पहले ब्लेम और कंप्लेन करना छोड़ दो। तो वो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि रादर देन ब्लेमिंग टू योर पार्टनर और योर इन लॉज और योर पेरेंट्स और योर किड्स, सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब ये तो सही बात है, जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, इट इट इज रिपीटेटिव, वो हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो इट इज फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली। हम अपने लाइफ में जो कर रहे हैं उसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा। बट स्टिल, जैसे आपने बोला कि नो ब्लेम नो कंप्लेन, बट जब वो लड़ाई होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो ट्रिगर मोमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे तो कोई इमोशनली स्टेबल, मतलब लोगों को इमोशनली स्टेबल रहने में बहुत तकलीफ होती है, तो उस टाइम पे वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने ब्लेम कंप्लेन छोड़ दिया और कल से सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इट विल टेक ना। टाइम एंड प्रैक्टिस स्मूथ। जैसे अगर आज मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया है, आज मैंने अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत करी है, तो वो टाइम लगेगा। और जैसे ही मेरे लाइफ कोचिंग में जब भी आते हैं ना, मिडल ऑफ लाइफ कोचिंग में जब पहुंचते हैं ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे और ज्यादा परेशानी आ रही है। लेकिन और ज्यादा परेशानी नहीं आ रही, आपके पैटर्न्स अभी चेंज होना शुरू हो रहे हैं। तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट आएगा लाइफ को मिडल ऑफ द लाइफ कोचिंग में, कि वहां पे अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और वहां पे आप टिक गए तो आप बदल गए। तो इसमें टाइम, एफर्ट, एनर्जी, प्रैक्टिस सब कुछ लगेगा। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ओनली ट्रिगर्स व्हाट इज विद इन। वो कॉन्फ्लिक्ट आ ही राइट। इसलिए रहे हैं क्योंकि अंदर अंदर कुछ है जो जिसे बदलना हमें जरूरी नहीं है। अगर राइट। हम अंदर से हर्टफुल है, ठीक है, अगर हम अंदर से रिजेंटफुल है, तो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वही सारे इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं। अगर जैसे मैंने कहा, गार्डन इन गार्डन आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कॉन्फ्लिक्ट या ऐसे जो ट्रिगरफुल मोमेंट्स है वो आपको बताएंगे, वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छी साइन है कि वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन से इमोशंस अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाए हैं मुझसे। तो उसे एज अ कॉन्फ्लिक्ट या एज अ ट्रिगर मोमेंट लेने की जगह एज अ सिग्नल और एज अ साइन लेना चाहिए कि अभी मुझे यहाँ पे काम करना बाकी है, यहाँ पे मुझे बदलना और जरूरी है, कि यहाँ यहाँ पे मुझे और पैटर्न है जिस पे काम करना जरूरी है। बिकॉज लोग जनरली कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को एज अ चैलेंज लेने की जगह एज अ फीडबैक लो, कि ठीक है, चलो अभी इस वक्त मैं अपने हर्ट को, यहाँ पे किसी ने मुझे कुछ बोला, मुझे हर्ट फील हो रहा है, मेरे सेल्फ जजमेंट या कुछ फियर्स है जो अभी सरफेस पे आ रहे हैं। सो बेसिकली ब्लेम कंप्लेन आप छोड़ेंगे तभी ये दूसरा पार्ट आप देख पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि ब्लेम कंप्लेन करना छोड़ के आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसके बाद इमोशंस को प्रोसेस करना सीखे, कि किस तरीके से उसे प्रोसेस करे, किस तरीके से उसे मैनेज करे, किस तरीके से उसे बदला जाए। जैसे लाइफ है, हर्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ आने ही वाला है, लेकिन जब आए तभी क्या करना है। बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, द मोर यू लर्न हाउ टू राइट। प्रोसेस इट। यू डोंट नीड टू हैंडल देम इन सच मोमेंट्स। उसके बाद आपको ऐसे मोमेंट्स पे शुरुआत में वो ट्रिगर होंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद ही ऐसे मोमेंट्स पे शांत रहना सीख जाएंगे। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है एब्सोल्युटली। कि जो भी मेरे साथ काम करना शुरू करता है, 6 से 8 महीने के बाद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद वो सिर्फ रिजल्ट शेयर करने के लिए आते हैं। बिकॉज वो 6 से 8 महीने में उन्होंने जो भी सीखा है, वो अब वो वो सीख गए हैं कि उनके इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि 6 8 महीने बाद कभी भी उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अब जब प्रॉब्लम आती है और उन्हें पता है कि इमोशन को कैसे प्रोसेस करना है। सो इसीलिए जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, शी वॉज, शादी उनकी लव मैरिज हुआ, उनका लव मैरिज हुआ था, और लव मैरिज के बाद अभी वो हस्बैंड को आई लव यू कहने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस उस रिलेशनशिप में आ गया था। और उसके बाद फिर एक दिन हमारे जो लाइन मेंबरशिप का क्लास है वो खत्म होकर सब जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे आपसे लास्ट में 2 मिनट बात करनी है, आप रहो।
तो उन्होंने जब रिजल्ट शेयर किया, आई हैव टीयर्स ऑफ जॉय इन माई आईज, कि नाउ आई कैन फील रिकनेक्ट विद माई हस्बैंड। और उसमें हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमने उनके इमोशंस को मैनेज करना उन्हें सिखाया था। उनके जो भी हर्ट, हाँ, रिजाइनमेंट बिल्ड हो गए थे, उन्हें वो सिर्फ अमेजिंग। रिलीज करना सिखाया। एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब जो भी आपने बोला, अवर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स अवर आउटर वर्ल्ड। तो जैसे हम अपना इमोशंस स्टेबल करते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो हमारे आउटर वर्ल्ड में भी वही हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होती है। एब्सोल्युटली ट्रू। तो और इसमें इसमें टू साइड जर्नी है ही नहीं, इट्स ओनली वन वे जर्नी। कि वन मेरा विजन। खुद के साथ जितना रिश्ता स्ट्रांग होगा, मैं खुद के साथ जितना कनेक्टेड होगी, बाहर इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। बाहर वो सिर्फ एक जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो जैसे आपने ये बोला कि खुद के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मतलब why is healing the relationship with oneself essential for more healing than any other relationship? आप मतलब why it is important? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ये टू वे जर्नी हमें लगता है कि दो इंसान एक दूसरे को समझे, ठीक है, तब हम्म। जाके रिलेशनशिप ठीक होगा। मोस्टली ऐसा ही कहा जाता है कि मेरे पार्टनर मुझे हम्म। नहीं समझते हैं या मेरी सुनते नहीं है। बट इट इज के अवर रियलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इंटरनल वर्ल्ड। जैसे अगर मैं मुझे क्या हो रहा है, मैं वो समझ ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कई बार लोगों के बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, अचानक डरने लगते हैं, अचानक गुस्सा करने लगते हैं, अचानक रोने लगते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन ये इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं? कभी आपने बैठ के उसे समझने की कोशिश करी कि भी आज मैंने ठीक तरीके से बिहेव नहीं किया, उस वक्त मुझे हुआ क्या था, क्यों हुआ था, मुझे क्या चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो भी हिडन फियर्स है या ही कहे कि अनहील्ड वुंड्स है, उसे हील करने के लिए ही चैलेंज के फॉर्म में कुछ ना कुछ चैलेंज हमारे सामने लाते हैं। जैसे हमारा रेडियंट रिलेशनशिप का कोर्स है, वहां पे हम उन्हें 7 एसेंस ऑफ मिरर्स सिखाते हैं, 7 एसेंस मिरर्स सिखाते हैं रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो वहां पे हम यही सिखाते हैं कि जो भी आपके हिडन फियर्स या आपका शेडो वर्क हम कहें, कि वो सारा आपका रिलेशनशिप वो ट्रिगर करेगा। और वो ट्रिगर इसीलिए करेगा ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट अभी अनहील्ड है, जिस पे आपको काम करना जरूरी है। और जैसे ही राइट। उसे आप हील कर देंगे, वो सिचुएशन ही पूरी बदल जाएगी। इट इज अ अलर्ट साइन फॉर अस टू एक्सेप्ट, फेस एंड ओवरकम अवर ओन लिमिटेशन। कि वो एक साइन है कि जहाँ पे हम खुद के जो फियर्स है या वुंड्स है, उसे फेस करें, एक्सेप्ट करें, और हमारी ही लिमिटेशंस को हम ओवर करें। बिकॉज इफ वी डोंट चेंज अवर इंटरनल स्टेट, इट विल साइलेंटली रिक्रिएट द सिमिलर एक्सपीरियंस। फिर क्या है, लोग बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएगी, चीजें बदल जाएगी, लेकिन जैसे पहले जो एक्सपीरियंस मुझे पेरेंट्स दे रहे थे, आज मुझे हस्बैंड से मिल रहे हैं। आज जो एक्सपीरियंस मुझे हस्बैंड से मिल रहा है, कल हो सकता है बच्चे सेम स्टोरी डिफरेंट होगी, कंप्लेन लेकिन कंप्लेन सेम रहेगी, स्टोरी डिफरेंट होगी, सिचुएशन डिफरेंट होगी। लेकिन जो फॉर एन एग्जाम्पल हम कहे कि हमारे जो बच्चे हमारे साथ, हमें लगता है कि सुनते नहीं है, ये नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन हमें पहले भी किसी ना किसी के साथ थी, तो किसी ना किसी के साथ वो प्रॉब्लम थी। फिर हमारे जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, कि घर में बहू आती है, तो वो हमारे इन लॉज का रिफ्लेक्शन लेके आएगी। तो वो क्या है कि जो जो पैटर्न्स है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। क्या आपका इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं बदल पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस विल ओनली चेंज व्हेन वी चेंज। और जब हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस बदलेगा, तभी बाहर का एक्सपीरियंस बदलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। क्योंकि बहुत जने अवेयर ही नहीं होते कि हमारे लाइफ में ये पैटर्न्स कैसे आते हैं और कैसे हैंडल करने चाहिए हमें। सो वन मोर क्वेश्चन कि आप बता सकते हो कि डेली में हम ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस करें सो दैट वी आर एबल टू ब्रेक द पैटर्न्स, द रेपिटेटिव पैटर्न्स इन आवर लाइफ। अगर खुद से करना है तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब भी कोई हार्ट ब्रेक हो रहा है, हर्ट, एंगर, कोई भी इमोशन आ रहा है, उसमें
ब्लेम और कंप्लेन को छोड़ने की एक कॉन्शियस हैबिट बनाओ, बिकॉज ये बोलना जितना आसान है, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टॉप ब्लेमिंग कंप्लेनिंग, ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हमें एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं ही बदलूं, मुझे ही सब कुछ सारा कुछ चेंज करना है, बिकॉज लोग मेरे पास ऐसी कंप्लेन लेकर आते हैं कि राइट। उनकी कोई गलती नहीं है, तो हमेशा मुझे ही बदलना पड़ेगा। सो इट्स लाइक, ये बोलने में जितना आसान है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल हैव फेस सम चैलेंजेस, लेकिन इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज अब तक क्या है, हमने किसी ने सिखाया नहीं था कि स्टॉप ब्लेमिंग स्टॉप कंप्लेनिंग, इसे आदत में डालते हुए आपको 2-3 महीना लग जाएगा कि हर बार, क्योंकि इट्स अ वॉर अगेंस्ट अवर ओन ईगो, ये हमारे खुद के ही ईगो के साथ हमारी वॉर शुरू हो जाएगी। दूसरी प्रैक्टिस जो कोई कर सकता है वो है होपोनोपोनो प्रेयर, बिकॉज रिश्तों को सुधारने के लिए होपोनोपोनो से अच्छा मुझे नहीं लगता दूसरा कोई टूल हो सकता है। और तीसरा, अगर किसी भी रिलेशनशिप को आपको लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रखना है, तो ऑलवेज फोकस ऑन गिविंग रादर देन रिसीविंग, बिकॉज जब आप देना शुरू करोगे तो आपको मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी लव बेस्ड इमोशन है वो देना चाहेंगे, और जो भी फियर बेस्ड इमोशन है वो लेना चाहेंगे। सो बेसिकली जब हम लव बेस्ड इमोशन में खुद को अलाइन करेंगे, आपको अपने आपका फोकस देने पे चला जाएगा, और जब आपका फोकस देने पे चला जाएगा, लेने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। So this is what I recommend. Thank you so much for this insightful session. It was really, really amazing. Lots and lots things to learn from you. But one last advice जो आप आज audience को देना चाहते हो, that will be helpful for them. So basically, लास्ट एडवाइस मैं यही देना चाहूंगी कि मास्टर द आर्ट ऑफ लविंग, एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ। मैं जानती हूँ कि ये सेंटेंस जितना छोटा दिखता है, इसे इम्प्लीमेंट करना इतना ही मुश्किल है, लेकिन वो आपको Right. सीखना पड़ेगा। यू हैव टू गिव सम टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी इनटू दिस। और अगले 6 महीने के लिए स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड ऑफ यू, just give some time to yourself and check what's going inside of you, because the patterns जो भी हमारे लाइफ में आपने 30-40 साल मेहनत करके जो पैटर्न्स आपने बनाए हैं, ठीक है, तो उसे उसे चेंज करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने तो खुद को देने पड़ेंगे। आपने 30-40 साल की कड़ी मेहनत के बाद इतनी नेगेटिव पैटर्न्स को बिल्ड किया है, तो उसे Right. बदलने के लिए एटलीस्ट गिव 6 मंथ्स टू योर सेल्फ। और अगर कोई भी रिलेशनशिप में या किसी लाइफ में अगर जब भी हमें कुछ बदलना है, तो आई वुड रिकमेंड के स्टॉप फिक्सिंग एंड स्टार्ट अलाइनिंग, कि प्रॉब्लम को फिक्स करने की जगह एनर्जी को अलाइन करना सीख लो। और उसके लिए अगर किसी भी इंसान की अगर हेल्प लेनी पड़े, और किसी भी कोच हीलर, जब मैं नहीं कह रही कि आप मेरे से ही सीखो, आपको जिस पे भी विश्वास है, किसी पे तो विश्वास करके उसे सीखना शुरू करो, बिकॉज मैंने खुद भी ये सब कुछ अपने आप नहीं सीखा है, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स मेंटर्स की हेल्प ली है, और उसके बाद मैं जो बनी हूँ वो बन पाई हूँ। सो एटलीस्ट स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम, आपको जिस पे भी विश्वास है उनसे सीखना शुरू करो। Absolutely. Thank you so much for this. And yes, you can connect टू पूजा जी। हम उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। यू कैन कनेक्ट फॉर एनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और अदर दैट ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी पैटर्न repetitive pattern issues you can connect to us. Link will be shared in the description. Thank you so much, Pooja, for थैंक यू being सो with us मच। here today and making this session really insightful. क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है रिलेशनशिप में जो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी से एंड वी सीक ऑन फाइंडिंग आंसर्स एंड आंसर्स, लेकिन जैसे कि आपने पूरा हमें आज बताया है टू अफोर्ड डूइंग द इनर वर्क एंड बीइंग अवेयरनेस एंड हाउ टू maintain our emotional state. So I hope all this will definitely help audience to overcome their challenges. या So थैंक यू सो मच। So, thank you so much, audience. Stay tuned until we meet next week on Reset and Rise with another guest. Thank you.